Hello, aspirants. Welcome to Nyayaveda Law Academy. I am Rajneesh Jindal, and in this session, I will be continuing with this Negotiable Instruments Act Part 3. And this particular part is most important for all of you if you are preparing for Rajasthan Judicial Services or MP Judicial Services or Himachal Pradesh or Jharkhand or Chhattisgarh or even Delhi Higher Judicial Services. Because nowadays, Negotiable Instruments Act has become one of the main act in the examination, and a lot of questions are being asked from this particular chapter or this particular subject, you should say. Chapter 17. So, एक एक नंबर मैटर करता है एक्चुअली. इन द एग्जामिनेशन आपका एक सिंगल नंबर इज ऑफ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. So how to cope up with this particular thing and how to tackle this particular issue, that is the point of discussion right now. So in the first part of NIA, I discussed with you what is the importance of NIA, why NIA was enacted, this act was enacted. And then I discussed with you the basics of NIA, holder in due course, the types of Negotiable Instruments Act, promissory note, bill of exchange, then check. Then I discussed with you about the difference between holder and holder in due course. Then we try to understand this why this particular check has become most important instrument right now. What is the meaning of negotiation, why they are being considered as transferable, इनके पास वो वैल्यू कहाँ से आती है ट्रांसफरेबिलिटी को लेकर के. Then we focused upon chapter 17. Chapter 17 section 138 से लेकर 148 तक, which is about the check bounce cases, and chapter 17 which is specifically a criminal complaint case. Now the issue is from chapter 1 till chapter 16 it is about civil case, and chapter 17 is about the criminal matter. In first video we discussed about the basics of this entire NIA. In the second part of this video we discussed about the landmark cases and the main essential elements of cases. And now today in this NIA and part 3, why this particular part is most crucial for all of you, because I will be discussing with you the PYQ analysis, all previous year questions analysis, whether it is of pre or even mains, and then even in interview what kind of questions are relevant. So on the basis of my in-depth analysis of previous year questions of NIA in various lower judiciary as well as higher judicial services examination, I'm going to give you the basic idea of the questions which generally comes in the examination, और कैसे कैसे किन किन चीजों पर आपको फोकस करके चलना है, that I'm going to discuss with you in this video. Okay. So the main question, if you see in many of the cases, in many of the subjects, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना आपको रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस. आपको सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस करना है कि आखिर कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, किस किस तरह की चीजों पर फोकस होता है एग्जामिनेशन के अंदर, और उसके बाद आपको ये एक एक्सपेक्टेशन या फिर आप ये कह लीजिए कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट कंटेक्स्ट को ऑब्जर्व करके आपको ये एनालाइज करना होता है कि आने वाले एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं. जिस दिन आप ये करना सीख गए ना बॉस, उस दिन जुडिशियल ऑफिसर बनकर ही निकलेंगे, क्योंकि यहाँ सबसे मेन एलिमेंट है आपको जो है ना, यू हैव टू फोकस अपॉन सर्टेन थिंग्स ओनली. आपको डीप एनालिसिस नहीं करना, वो टाइम के साथ आता है. आप जब जज बन जाएंगे उसके बाद आप काम करते रहिए, आप सीखते रहेंगे. लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, सो यू कांट बी एन एक्सपर्ट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम. तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं पास्ट में, उन्हें एनालाइज करिए, करंट के सिनेरियो से लिंक करके देखिए, और आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को अपने आप समझ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए गाइस अब शुरू करते हैं. वी विल जस्ट स्टार्ट विद दिस पार्ट 3, और जहां पर सबसे मेन क्वेश्चन है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो एनआईए में पूछ लेते हैं, और खासकर राजस्थान अभी आने ही वाला है आपका. तो राजस्थान के लिए तो ये बहुत क्रूशियल चैप्टर बन चुका है, और बहुत
केसेस में एस्पिरेंट को एक दिक्कत आती है कि उन्हें पता ही नहीं होता ये सब्जेक्ट क्या है, बिकॉज ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल जार्गन्स, और क्योंकि मार्केट में इसको ढंग से पढ़ाया जाता ही नहीं है। दैट इज अनदर इशू। तो गाइज अब हम फोकस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं, तो वो कैसे कैसे कवर होते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप जब भी किसी एक्ट को पढ़ेंगे, प्लीज माइंड इट, आप उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है किसी भी एक्ट का, जो बेयर एक्ट में गिवन होता है, और एनआईए में तो खासकर एनआईए में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका बेयर एक्ट के अंदर, प्लीज इसे ध्यान से पढ़िए। क्योंकि आप इसे इंट्रो पार्ट में भी कह सकते हैं, और इवन कुछ कुछ एक्ट्स में ये प्रियम्बल के नाम पर भी गिवन होता है। जैसे आर्बिट्रेशन की बात करें तो वहां पर भी इसका इंट्रो पार्ट काफी क्रूशियल है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। कई बार तो मेंस का आंसर आपका यहीं से निकल आता है। कोई क्वेश्चन अगर आता है ना जो कि लाइक व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एनआईए, और व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन, या कहाँ से आया इसका थोड़ा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन लिखिए, तो कुछ क्वेश्चंस आपके यहीं से निकल आते हैं मेंस के अंदर। ठीक है, तो प्लीज इन्हें जरूर पढ़िएगा। नाउ सेकंड, अभी मैं आपको प्री के क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ कि प्री में कैसे कैसे क्वेश्चंस लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं। तो सबसे पहली बात तो, हर एक एक्ट का जब इनेक्टमेंट होता है तो क्वेश्चन आता है कि वो उस पर्टिकुलर ईयर का कौन से नंबर का एक्ट था, और कब से वो एक्चुअल में, व्हेन इट केम इनटू फोर्स, कि वो एक्चुअल में एप्लीकेबल कब से हुआ। तो अगर एनआईए की बात करें तो इट इज 1881 एक्ट। ठीक है, और अगर हम बात करें इट इज एक्ट 26 ऑफ 1881। एक दो बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ रखा है। और क्वेश्चन है कि फिर ये आपका व्हेन इट केम इनटू इन फोर्स, ये फिर फोर्स में कब आया। इट केम इनटू इन फोर्स 1 मार्च 1882, नंबर वन। सिमिलरली आप जब बात करेंगे, नाउ जब भी किसी एक्ट को पढ़ें एक बात ध्यान रखिएगा कि उस एक्ट के कब कब मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स किस ईयर में हुए, उस ईयर में जब अमेंडमेंट हुआ तो वो कौन से नंबर का एक्ट था, और वो उसके बाद कब फोर्स में आया। इन चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट ओनली फॉर एनआईए, इट इज फॉर एवरी अदर सब्जेक्ट एज वेल। उसके बाद यहाँ सबसे क्रूशियल एलिमेंट आता है कि चैप्टर 17, जिस पर हम बार बार बात कर रहे हैं, ये चैप्टर 17 कब आया। तो दिस केम नियरली 100 ईयर्स लेटर ऑन। तो 1881 के बाद ये लगभग 107 साल बाद ये एक्ट आपका आया, मतलब जो अमेंडमेंट आया चैप्टर 17 को लेके। तो दिस वाज द एक्ट ऑफ 66 ऑफ 1988, and it came into in force on 1st of April 1989। ये डेट्स आपको याद रखनी है बॉस। और अब क्वेश्चन आता है कि सर इतनी सारी चीजें याद कैसे रखें, बहुत सारे एक्ट हैं, उन सबकी डेट्स को याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये काफी क्वेश्चंस है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एस्पिरेंट्स हमेशा अपनी लाइफ में फेस करते हैं। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है बच्चों, अपनी स्टडी टेबल पर एक बोर्ड लगाइए, वहां पर अपने राइटिंग नोट्स वगैरह जो भी आपके हैं, जो नोट्स आपने बना रखे हैं, या जो भी आपका बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर अपने इन डेट्स को पिन कर दीजिए। अब आपको रट्टा नहीं मारना, आपको क्रैमिंग नहीं करनी, आपको बस जब भी आप अपना टेबल पे बैठे हैं आप देखें, आपको वो ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद याद होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्रैमिंग नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना। ठीक है, उसके बाद गाइज हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि अगला जो आपके पास पॉइंट है दैट इज एक बड़ा छोटा सा एलिमेंट है जो अधिकतर लोग मिस कर देते हैं, जो ध्यान ही नहीं देते हैं। एक्चुअल में चैप्टर 17 जो था ना, उसके 142 तक ही सेक्शन एक्चुअल में इंट्रोड्यूस हुए थे। सेक्शन 143 से लेकर के 147 तक के जो सेक्शंस थे शुरू में, वो बाद में ऐड हुए थे, और ये चीज अधिकतर जगह पर मिस कर दी जाती है। और इवन कुछ स्टेट्स में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आ रखा है। तो सेक्शन 143 से लेकर 147 तक के जो सेक्शंस हैं, एक्चुअल में ये 2002 में इंट्रोड्यूस किए गए थे थ्रू द एक्ट 55 ऑफ 2002। और जो इनकी डेट थी, व्हेन दे केम इनटू फोर्स, दे केम इनटू फोर्स ऑफ 6th ऑफ Feb 2003। एक छोटा सा पॉइंट लोग मिस कर देते हैं, और कई बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं, और फिर उसके बाद दिक्कत ये आती है कि फिर बच्चा कहता है कि यार ये तो पता ही नहीं, चीज तो कभी सोची ही नहीं थी, ये तो हमें कभी पढ़ाया नहीं गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं होती हैं क्लासेस के अंदर, तो दैट यू आर गेटिंग ओवर हेयर एट न्याय वेदा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको एक केस बताया था, एक लैंडमार्क केस की हमने बात करी थी।
दशरथ रूप सिंह राठौर केस। एक्चुअली मैं बार बार इस केस का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि इस केस के आने के बाद जो है ना, बहुत बहुत सारी चीजें जो थी ना वो रिजोल्व हो गई। बहुत बड़ा एक्चुअल में इसको मिसयूज किया जाता था एनआईए के प्रोविजंस को, तो जो कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को लेकर के एक्चुअल में केस था आपका, कि केस अगर चेक बाउंस के केसेस जो होंगे वो कहाँ फाइल किए जाएंगे, तो उसको लेकर के ये मैटर था। तो दिस जजमेंट केम इन 2014। तो दिस जजमेंट जब ये आया 2014 में, उसके बाद ही फिर एक अमेंडमेंट कर दिया गया था। तो जिस अमेंडमेंट को लेकर के बेसिकली सेक्शन 142 को अमेंड किया गया था। तो सेक्शन 142 में ये अमेंडमेंट 2015 में की गई थी, ठीक है। और फिर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि एप्लीकेबल कब से हुई थी, तो ये एप्लीकेबल हुआ था 15 जून 2015 से। तो सेक्शन 142 के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया था 2015 में, दैट केम इनटू फोर्स इन 15 जून 2015, ठीक है। इसके बाद नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फिर 2018 में मेजर अमेंडमेंट की गई जो कि इंटरिम कंपनसेशन को लेके थी, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपसे प्रीवियस सेशन में बात भी करी थी। तो वीडियो नंबर 1 पार्ट नंबर 1 में आई एक्सप्लेन यू कि कैसे कैसे इंटरिम कंपनसेशन अवॉर्ड किया जाता है, कितनी लिमिट होती है। और याद रखना बॉस, एग्जाम में ये क्वेश्चन बड़ा रिपीटेडली आ रहा है, एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है बड़ा रिपीटेडली आ रहा है। तो इंटरिम कंपनसेशन को लेकर के सेक्शन 143A एंड सेक्शन 148 को लेकर के, ठीक है। तो 143A का मैंने आपको बताया था कि 143A जो है दैट इज एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली एंड दिस इज एप्लीकेबल रिट्रोस्पेक्टिवली। क्वेश्चन आता है कि ये जो अमेंडमेंट हुआ था, दिस वाज द एक्ट 20 ऑफ 2018 और इसकी एप्लीकेशन डेट थी 1 सितंबर 2018, 1 सितंबर 2018, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फिर क्वेश्चन आता है आपके सामने और जो मेन मेन कुछ केसेस मतलब कुछ चीजें सामने आती हैं। एक आता है सेक्शन 141 को लेकर के, जहां पर ऑफेंसेस बाय कंपनीज की बात कर रखी है, विच इज अबाउट, और उसमें एक प्रोविजन है आपका कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी को लेकर के। क्योंकि आज तक आप लोगों ने जहां भी पढ़ा होगा वहां सिर्फ वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात की जाती है, बहुत सारे लोग इस लाइबिलिटी को जानते ही नहीं है, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। तो दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी वाज laid down in this Standard Chartered Bank versus State of Maharashtra 2016। पहले भी कभी कभार रहा इसके बारे में, लेकिन इसको लेकर के फिर क्लैरिटी दे दी गई थी कि आखिर कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का प्रोविजन क्या रहेगा। और सेक्शन 141 की जो वर्डिंग आप जब पढ़ेंगे वो इसी के रिगार्डिंग इंडिकेट करती है, ठीक है। फिर कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या सेक्शन 138 जो चेक बाउंस के मैटर्स हैं, क्या वो मेंस रिया को लेकर के बात करते हैं क्या, क्योंकि है तो क्रिमिनल मैटर, ये क्रिमिनल कंप्लेंट मैटर है। तो क्रिमिनल मैटर्स में नॉर्मली मेंस रिया की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एक्टस रियास प्लस मेंस रिया। लेकिन सेक्शन 138 के मैटर्स में इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहां पर इसकी रिक्वायरमेंट बॉस नहीं होती, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बहुत बार कॉन्टिन्यूसली देखने को मिलेगा ड्यूरेशन को लेकर के। आपको मैंने समझाया था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि सेक्शन 138 और 142 जो आप पढ़ते हैं, यहाँ पर ड्यूरेशन को लेकर बात की गई है। और ड्यूरेशन को लेकर के जो बात की गई है वो ये है कि जैसे ही चेक आपका बाउंस हो जाता है, यानी कि डिसोनर हो जाता है, तो जैसे ही आपको चेक डिसोनर होने की इंटीमेशन मिलती है, तो उसके जस्ट 30 डेज के अंदर अंदर आपको एक नोटिस सर्व करना होता है जिसने चेक इशू किया था। और आपको नोटिस के लिए उसको 15 डेज का टाइम देना पड़ता है कि 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दो। अगर वो नोटिस मिलने के 15 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करता, तब उस केस में आपको विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ जो है, यू हैव टू फाइल अ क्रिमिनल कंप्लेंट बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपका जो ये क्रिमिनल कंप्लेंट है ये राइटिंग में फाइल की जाती है। एग्जाम में प्री में ये भी क्वेश्चन आ रखे हैं बस
और इवन ये ड्यूरेशन पूछ रखी है कि चेक बाउंस होते ही कितने दिनों में नोटिस सर्व करना है, कितने दिन का टाइम पीरियड ग्रांट करना है, और कितने दिनों में कंप्लेंट फाइल करनी है। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ यू कैन से चेक बाउंस केसेस। तो आप ये ड्यूरेशन को भी ध्यान रखिएगा बॉस, ड्यूरेशन के बहुत क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन को लेकर क्वेश्चन आता है कि प्रिजम्पशन को लेकर के कहां प्रोविजन गिवन है। ठीक है, प्रिजम्पशन को लेकर के तो सेक्शन 139 का एग्जैक्ट नंबर पूछ लेते हैं कि प्रिजम्पशन क्या है, और ये जो प्रिजम्पशन इसका नेचर क्या है। तो इट इज रिबटेबल प्रिजम्पशन। बट पॉइंट ये है कि जो बर्डन है इसको मतलब एब्जॉल्व करने का, दैट इज अपॉन द एक्यूज्ड। तो जो बर्डन है दैट इज अपॉन द एक्यूज्ड। लेकिन अब क्वेश्चन एग्जाम में ये आने लगा है कि जो ये बर्डन है बेसिकली इस बर्डन को मतलब टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के थ्रू जब हम बात करते हैं तो आखिर इसका बेसिकली लेवल क्या है। तो इट इज प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो ये प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे है, क्योंकि भले ये क्रिमिनल मैटर है सारा का सारा, लेकिन इसकी तासीर, इसका आउटकम जो है वो सिविल नेचर का है। और यही सबसे बड़ा रीजन है गाइस कि सेक्शन 147 की जब हम बात करते हैं विच इज अबाउट कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 138, जहां पर मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि कंपाउंडिंग को लेकर के कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यहां पर सीआरपीसी का सेक्शन 320 अप्लाई नहीं करेगा। यहां पर आपका ट्रायल के टाइम पर भी कंपाउंडिंग हो सकती है, अपील के टाइम पर भी हो सकती है, इवन कन्विक्शन होने के बाद, इवन पनिशमेंट होने के बाद भी कंपाउंडिंग की जा सकती है, क्योंकि इसका अल्टीमेटली इसकी तासीर सिविल मैटर की है। ठीक है, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर से वो आते हैं आपका सेक्शन 138 में ये पूछ लेते हैं फाइन के अमाउंट को लेकर के, फाइन के जो है वो कितना है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो 2 टाइम्स ऑफ चेक अमाउंट तक आपका यहाँ पर फाइन लगाने की पावर है। मतलब आप अगर बात करें तो जो यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी एक्चुअली, अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट क्या रहेगी, तो फाइन को लेकर के पनिशमेंट है कि वो 2 टाइम्स ऑफ चेक अमाउंट रहेगी। और अगर मैं इम्प्रिजन की बात करूं, इम्प्रिजनमेंट, तो वो 2 इयर्स की है। ठीक है, तो एक इसको नोट करके रख लीजिएगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन जो एग्जाम में काफी टाइम देखा गया है, सेक्शन 138 और सेक्शन 142 जो हैं, ये 2 सेक्शन जो हैं, इनके जो सब सेक्शंस हैं और जो क्लॉजेज हैं और इवन जो प्रोवाइजो गिवन है, एग्जाम में कई बार इनके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप 138 और 142 पर थोड़ा सा रट्टा मार लेना। रट्टा इन द सेंस ये नहीं कि मतलब बैठ जाओ याद करने के लिए, क्रैमिंग करने, नहीं। इन सेक्शंस को 3-4 बार पढ़ते रहना, अपने आप समझ जाओगे। और फिर पीवाईक्यूज को सॉल्व करना। इस वीडियो को सुनने के बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठना, किसी भी स्टेट के किसी भी ईयर का, बिलीव मी गाइस, आपका सक्सेस रेशियो 100% होगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कवर करके चलेंगे। उसके बाद 2 छोटे से टॉपिक्स और रहते हैं आपके। अब आते थे ट्रायल को लेकर के। तो आपको मैंने बताया था अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर कि इसके जो ट्रायल की बात होती है नॉर्मली, तो ये एक तरह से समन्स केस है। और समन्स केस का ट्रायल जो आपका गिवन है दैट इज गिवन इन सेक्शन 251 टिल सेक्शन 259 ऑफ सीआरपीसी। लेकिन सेक्शन 259 ऑफ सीआरपीसी ये भी कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कभी भी कि ये जो मैटर है बेसिकली इसका ट्रायल जो है एज अ वारंट केस होना चाहिए, तो क्या चेक बाउंस के केसेस का ट्रायल वारंट केस की तरह से हो सकता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। तो यस, अंडर सेक्शन 259 दिस प्रोविजन हैज बीन गिवन। और जब वारंट केस के लेकर हम बात करेंगे तो आप सेक्शन 244 से लेकर के 250 तक के सेक्शंस आप इसमें रेफर कर सकते हैं, जो कि वारंट केस के ट्रायल को लेकर बात करते हैं, व्हेन द केस हैज बीन इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ दिस पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, और उसके अलावा समन्स केस का जो ट्रायल है, स्पेसिफिक केसेस में समरी ट्रायल भी हो सकता है। तो समरी ट्रायल को लेकर के वी हैव बीन गिवन सेक्शन 262 टिल सेक्शन 265 ऑफ सीआरपीसी। तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये आ रखा है कि क्या समरी ट्रायल के प्रोविजंस यहाँ अप्लाई करते हैं, तो यस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ समन्स केस भी अप्लाई करता है, समरी ट्रायल भी अप्लाई करता है, और वारंट केस भी अप्लाई करता है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट उसके बाद इंटरिम कंपनसेशन के अमाउंट को लेकर के बड़े फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। इंटरिम कंपनसेशन
तो 143A में जब ट्रायल चल रहा है तो ट्रायल के टाइम पर अप टू 20% ऑफ चेक अमाउंट, बेसिकली बॉस ये ध्यान रखिएगा ये चेक अमाउंट की बात कर रहा है, अप टू 20% ऑफ चेक अमाउंट ट्रायल के टाइम पे। लेकिन जैसे आप सेक्शन 148 में चले जाते हैं जो कि अपील की बात करता है, तब उस केस में मिनिमम 20% ऑफ फाइन imposed बाय ट्रायल कोर्ट। तो ट्रायल कोर्ट ने जो फाइन इंपोज किया है उसका मिनिमम 20% है। और फिर ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि इनको पे करने की ड्यूरेशन क्या है, दैट इज जब ऑर्डर पास होता है उसके 60 डेज के अंदर अंदर। फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्या इसको आप इसको क्या कोर्ट के पास पावर है कि वो इसे एक्सटेंड कर सकती है? यस, 30 डेज अनदर 30 डेज के लिए भी ये एक्सटेंड हो सकता है। तो यानी कि इन टोटल इट इज 90 डेज। ठीक है। और ये जो है ना बेसिकली 60 प्लस 30 डेज, दिस इज एप्लीकेबल इन बोथ केसेस, 143A में भी अप्लाई करेगा और 148 में भी अप्लाई करेगा। लेकिन अगर एक्यूज्ड केस को जीत जाता है तो जो कंप्लेनेंट था, क्योंकि कंपनसेशन उसको मिलता है कंप्लेनेंट को, लेकिन अगर मैटर एक्यूज्ड के फेवर में चला जाता है तो फिर ये सारा पैसा जो भी दिया गया था टू द कंप्लेनेंट, ये सारा पैसा विद इंटरेस्ट वापस होगा कंप्लेनेंट के थ्रू एक्यूज्ड को। और ये उसके लिए भी ड्यूरेशन सेम होगी कि ऑर्डर पास होने के 60 डेज के अंदर अंदर, और जो कि 30 डेज एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया जा सकता है। तो बॉस इस तरह से जब पढ़ेंगे ना आप इन चीजों को, अब आप है ना इस वीडियो को देखने के बाद आप एनआईए की अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है किसी भी ऑथर की, जस्ट उसे उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाइए। बिलीव मी, ये पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 सुनने के बाद एनआईए का आप एक भी क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। बस आपके सामने एक दिक्कत यहाँ आ सकती है कि जजमेंट्स को लेकर के, क्योंकि क्या होता है कि हर स्टेट में ना जजमेंट्स को लेकर के बड़ा ही एक रैंडम तरीका है कि कहीं से भी जजमेंट उठाकर कई बार दे दी जाती है लैंडमार्क के अलावा या लेटेस्ट के अलावा भी। तो आपको उस एक दो ऐसे क्वेश्चंस पर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो भी बेहतर है, इट्स नॉट एन इश्यू। क्योंकि 100% स्कोर आप नहीं कर सकते, आप क्या कोई नहीं कर सकता, तो उस चीज पर मत जाइए। आप फोकस करें कि आप बेटर कितना कर सकते हैं, और जितना डिस्कशन इन 3 वीडियोस में किया गया इट इज अराउंड 99%। 1% तो बॉस नो वन कैन टेक ए गारंटी कि 100% ऐसा ही होगा। तो एक दो केस हो सकते हैं कि कभी बाई चांस कहीं से और उठाकर दे दें। तो एक काम करिए, हमेशा जो लेटेस्ट केसेस आते रहते हैं उन पर वॉच रखिए, और खासकर उन केसेस पर जस्ट पर्टिकुलर स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर कोई केस उस पर्टिकुलर स्टेट से होकर के मूव किया है तब उस पर्टिकुलर केस पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में अब आ जाए वो पर्टिकुलर केस। अदरवाइज जो केसेस आपसे मैंने पार्ट 2 में डिस्कस करे हैं, अभी जो पार्ट 3 में यहाँ पर जो टॉपिक्स आपसे मैंने डिस्कस करें, और पार्ट 1 में जो आपसे बेसिक डिस्कस करा, अगर आप तीनों क्लब करके इन वीडियोस को सुन लें, यू डो नॉट रिक्वायर एनीथिंग एल्स इन एनआईए। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आता है कि मेंस एग्जामिनेशन में आप कैसे कैसे क्वेश्चंस फेस कर सकते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, मेंस एग्जामिनेशन को लेकर के जो राजस्थान का पैटर्न रहा है वो रहा है जैसे कि सेक्शन 1420 आईपीसी, जो 420 आईपीसी है, और जो आपका सेक्शन 138 एनआईए है। कई बार क्या होता है कि कंप्लेनेंट दोनों ही तरफ मूव कर जाता है। तो जब कोर्ट फिर पूछती है कि भैया आप बताइए आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो आपकी डिस्क्रिप्शन पूछी जाती है तो आप बताएंगे, क्योंकि 138 के लिए स्पेशल एक प्रोसेस, स्पेशल कोर्ट है। 420 के लिए तो फिर आपको एफआईआर के थ्रू मूव करना पड़ेगा। तो नॉर्मली लोग फिर यहाँ पर मना कर देते हैं और यहाँ आ जाते हैं। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर चेक को इशू करने में डिसेप्शन का एलिमेंट था देन ऑब्वियसली आप यहाँ आएंगे। तो आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार देखा गया है कि जहां पर 420 आईपीसी और 138 एनआईए को लेकर के कंपैरेटिव डिस्कशन की गई है। एक आप इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। सेकंड, जो 138 के चेक बाउंस के मैटर्स में 142 में जो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की जाती है, कई बार क्वेश्चन आ रखा है कि उसका जो फॉर्मेट है वो ड्राफ्ट करिए। तो आपसे कहा जाता है कि ड्राफ्ट दी फॉर्मेट ऑफ द कंप्लेंट। तो अगर आपके पास जो भी बेयर एक्ट है किसी भी कंपनी का, उस बेयर एक्ट के पीछे जो अपेंडिक्स गिवन होता है वहां पर आपके पास पूरा का पूरा फॉर्मेट्स गिवन है। आप उस फॉर्मेट के बेसिस पे एक डिजाइन तैयार करिए, और आई एम जस्ट गिविंग यू माई नंबर। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना आंसर प्रिपेयर करके आप ये मेरे को यहाँ शेयर कर सकते हैं गाइस। ठीक है, इस नंबर पे आप अपना आंसर राइटिंग करके यू ड्रॉप दिस पीडीएफ फाइल टू मी ऑन माई दिस नंबर, आई विल इवेल्युएट योर आंसर
ऑफ दिस मेंस आंसर राइटिंग एंड आई विल गेट बैक टू यू। मैं आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ गलतियां की हैं, कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप ये आंसर्स लिख सकते हैं, इनके आंसर्स लिख करके यू कैन सबमिट इट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड देन आई विल गेट बैक टू यू रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भाई ये जो जजमेंट राइटिंग को लेकर के राजस्थान में तो और एमपी में तो ये बड़ा क्रूशियल हो चुका है। तो जजमेंट राइटिंग को लेकर के बीइंग अ जज, अगर आपके सामने चेक बाउंस का मैटर था, आपने उसे डिसाइड करा, तो दे विल गिव यू ब्रीफ फैक्ट्स और उसके बेसिस पे आपको जजमेंट राइटिंग करनी है। आप जजमेंट राइटिंग करने के लिए लोग बड़े यहाँ पर एक्सपर्ट बन जाते हैं मार्केट के अंदर कि देखो ये होता है वो होता है। बहुत एक सिंपल तरीका समझा दूं मैं आपको। आप अपना ई कोर्ट्स की वेबसाइट पर जाइए या ऐप पर जाइए और जिस स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उस स्टेट के जजमेंट्स डाउनलोड कर लीजिए। आप जब ई कोर्ट्स की ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आपको जजमेंट्स डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप स्पेसिफिक सेक्शन मेंशन करके भी चेक कर सकते हैं कौन कौन से केसेस का सॉल्यूशन क्या आया है, और वहां से जजमेंट्स को डाउनलोड करके पढ़िए कि जजमेंट कैसे लिखी है उस कोर्ट ने, उस जज ने, उसे पढ़िए और उस तरीके से अपने आप को तैयार करिए। तो मार्केट में जो क्लेम करते फिरते हैं कि ऐसे करिए, उसमें ये लिखिए वो लिखिए, तो बॉस आपको जजमेंट राइटिंग करनी है तो आपको एक जज के माइंडसेट से सोचना पड़ेगा। आप किसी एक्स वाई जेड के माइंडसेट से सोच करके जजमेंट राइटिंग नहीं कर सकते। तो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट जिसकी भी आप तैयारी करें बॉस, वहां के पर्टिकुलर सिस्टम को समझिए सबसे पहले। तो राजस्थान है अगर आप कर रहे हैं तो राजस्थान के अंदर, क्योंकि ये जजमेंट राइटिंग क्वेश्चन वहां काफी आता है, तो जजमेंट राइटिंग के अंदर उस पर्टिकुलर स्टेट के जजमेंट्स को डाउनलोड करिए और पढ़िए और देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। और जब आप अपने आप को जज की तरह से ट्रीट करना शुरू कर देंगे, थिंक लाइक अ जज, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जज की तरह से सोचना शुरू करिए, बिहेव करना शुरू करिए और आंसर राइटिंग करना शुरू करिए, जजमेंट राइटिंग करना शुरू करिए, काम खत्म। आप बन गए जज। लेकिन अगर आप सोचे कि मैं किसी ऐसे बंदे से समझूंगा जो भाई साहब जिसने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं कि जजमेंट लिखे कैसे जाते हैं, तो नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए इधर उधर की चीजों में मत जाइए। और ये जो स्टडी मटेरियल को लेकर आप सोचते हैं कि स्टडी मटेरियल पढ़ लेंगे इस पर्टिकुलर यहाँ से और वहां से और हम जज बन जाएंगे, बोस मुखर्जी नगर में, करोल बाग में फुटपाथ पर बिखरे होते हैं स्टडी मटेरियल। अगर यही पढ़ करके सब कुछ हो रहा होता ना, तो सारी दुनिया आईएएस ऑफिसर और सारी दुनिया जज बनी बैठी होती। इसीलिए इन सब चीजों को दिमाग से निकालिए, अपना स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना शुरू करिए, मेन अपने बेयरक्स पर ध्यान दीजिए। और जब तक आप स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा लास्ट में आप सभी को कि प्लीज जजमेंट राइटिंग और ये जो टॉपिक्स आपसे मैंने डिस्कस करें, आप इन सब के आंसर राइटिंग अपनी कर सकते हैं। पीवाईक्यूज वगैरह सर्च करिए, मार्केट में दुनिया भर की बुक्स हैं, उन्हें लेकर आइए, मेंस के क्वेश्चंस देखिए, उनका आंसर लिखिए और मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो कि सर ये मैंने आंसर राइटिंग की है, प्लीज इसको इवेल्युएट करके मुझे बताइए वेयर आई कैन improve एंड आई विल डू दिस एज soon as possible. So this is the way you should prepare for your examination. And if you want to meet me in person regarding this free mentorship session for NIA, you just drop me a message. I will reply you regarding the timings and the day and the venue, and you can come and we can have a one-to-one discussion about this particular NIA. So for the timing, thank you guys. Thank you very much. In the next session, I will be discussing with you another main subject in the judicial services examination preparation. तब तक के लिए धन्यवाद।